Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Environment. And today we are going to discuss Consumer Protection Act 1986, Part 4. In this Part 4, we are going to discuss about the consumer rights. As we know that we have learned about what the Consumer Protection Act is, what are the main features, and what is the definition of consumer under the Consumer Protection Act 1986. Now, today we are going to discuss about the consumer rights. As you know that Consumer Protection Act 1986 is all about the what it is. It is all about to give the rights to the consumer with a view to empowering them and to protect their interests. So that's why that is a very important necessary thing is here. To we should aware about what is a consumer rights. कंज्यूमर राइट्स क्या है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का आया. तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली द कंज्यूमर राइट्स एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट provides 6 rights of the consumer. So here we will study about the 6 rights of the consumer and what are the rights of the consumer which give them और empower the consumer and then protect their interest. तो क्या क्या वो rights हैं जो consumer को मिलने चाहिए. Let's start with the first one, that is the right to safety. Right to safety means सुरक्षा का अधिकार. The consumer has to right to be safety or the protected against the goods and services. Consumer के पास ये right है. They are to be the consumer are to be protective against the goods and service which are hazardous to their health or life. कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर के लिए हैजार्डियस हो सकता है, कंज्यूमर के लिए हेल्थ के लिए लाइफ के लिए हैजार्डियस है, ऐसे प्रोडक्ट से कंज्यूमर की सेफ्टी प्रोवाइड करना कंज्यूमर का राइट है. ये कंज्यूमर को सेफ्टी मिलनी चाहिए. और यू कैन से दैट कंज्यूमर की सेफ्टी में जब भी हम बात करते हैं हमारे दिमाग में हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आता है. इलेक्ट्रॉनिक आइटम अप्लायंसेस which are manufactured with the substandard product do not conform to the safety norm might cause serious injury. So that is the most important thing. Whenever the manufacturer or the seller sell out or manufacture his electronic appliances, electronic items, then he should be care about substandard and he should take into the consideration about the safety measure of that particular electronic appliances, because this safety appliances should be should be safe for the consumer. तो इसीलिए कंज्यूमर को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए मैन्युफैक्चरर हमेशा सेफ्टी को ध्यान रखे जब भी वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को मैन्युफैक्चर करता है या सेल आउट करता है, क्योंकि ये सेफ्टी मेजर कंज्यूमर का सेफ्टी का राइट है. And the consumer are educated, and as well as this is also important that consumer are to be educated that they should only use the electronic appliances which are ISI marked. जो भी इलेक्ट्रॉनिक appliances ISI marked होते हैं उन्हीं को कंज्यूमर परचेज करे in case of electronic appliances. And this is basically a right to safety राइट ऑफ द कंज्यूमर. इसलिए कंज्यूमर के लिए भी जरूरी है कि वो ऐसे प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम को परचेज करे जो कि ISI मार्क्ड हो. Now second rights of the consumer, that is consumer to be informed or right to be informed, means the consumer has a right to complete information. Means consumer को हर एक information जानने का अधिकार है about the product or the goods and services which he intended to buy, like what the ingredient of that particular goods, what is the date of manufacturing goods, and what is the MRP of that particular goods, and what is the quantity, direction for use. This should be mentioned in the package or label of the product. तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. कंज्यूमर जब भी कोई गुड्स को परचेज करे तो कंपनी हमेशा अपने प्रोडक्ट के बाहर पैकेजिंग में, लेबलिंग में पूरी इंफॉर्मेशन देगी, लाइक इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज हुए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है. दवाइयों में आप यू हैव मस्ट हैव सीन दैट की आपको ये सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसकी
डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, इस प्रोडक्ट प्राइस का प्रोडक्ट क्या है, क्वांटिटी क्या है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज किए एंड हाउ टू यूज दिस product. This should be mentioned in the packaging or the labeling of the product. So this is very important thing that consumers has to be have to be aware about the complete information about the product. और यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर को भी ये सब इंफॉर्मेशन अपने पैकेजिंग और प्रोडक्ट के लेबलिंग में देनी बहुत जरूरी होती है एंड दिस इज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. कंज्यूमर के पास पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार होता है. नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज अ राइट टू चूज. Right to choose, it means that consumer has a freedom to choose from the variety of product at the competitive price. It means that whenever you goes to the seller, जब भी वह किसी शॉपकीपर या सेलर में जाते हैं तो यहाँ पर यू हैव अ राइट टू चूज. आप उसे कोई भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मांग सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड का, प्राइस का, साइज का मांग सकते हैं. और यहाँ पर मार्केटर या जो सेलर होता है उसको भी पूरे प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर को दिखाने जरूरी होते हैं. एंड द कंज्यूमर के पास ये राइट होता है कि ऑन हिज विश he want and whatever the product he want ये he can choose. तो उसका चॉइस का, चूज का पूरा डिसीजन किसका होता है? कंज्यूमर का होता है. कंज्यूमर अपने कॉम्पिटिटिव प्राइस पे किसी भी चीज को परचेज कर सकता है. तो राइट टू चूज इज बेसिकली राइट ऑफ द कंज्यूमर. तो कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकता है, किसी भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को मांग सकता है एंड दिस इज अ राइट ऑफ द कंज्यूमर. तो कंज्यूमर के पास पूरा राइट होता है कि वो अपनी अलग अलग वैरायटी, अलग क्वालिटी, ब्रांड, प्राइस, साइज के हिसाब से अपने कंज्यूमर अपनी डिमांड कर सकता है. एंड you can say that it is a basically right which allow the consumer to make a choice from among variety. So here you can see that another logo that is seen की एक जिद करो, ग्राहक के रूप में अपने अधिकारों की मांग करो. आप ये बताया जा रहा है एक जिद करो, गोल्डन मार्क. ये एक, जब भी आप गोल्ड खरीदते हैं तो इस तरह का मार्क बहुत जरूरी होता है. इट एंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. गोल्ड की क्वालिटी को ढांकने के लिए आपको गोल्ड होल मार्क पता होना चाहिए. ISI मार्क बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने से पहले आपको जज करना होता है. एंड जिद करो कि आप राष्ट्रीय, राजकीय तथा जिला फोरम द्वारा अपनी शिकायतों पर न्याय की सुनवाई की मांग कर सकते हैं. मीन्स अगर आपको कोई भी ग्रीवेंसेस है तो आप अपनी उपभोक्ता फोरम में जाके अपनी शिकायतों को कर सकते हैं. यहाँ पर उपभोक्ता नंबर दिया गया है जिससे कि अपनी कंप्लेन को डाल सकते हैं. तो ये एक तरह का एडवर्टीजमेंट जो मैंने आपको दिखाया. नाउ अनदर राइट्स ऑफ द कंज्यूमर दैट इज अ राइट टू बी हर्ड. मतलब सुनना. कंज्यूमर हमेशा ये चाहता है, द कंज्यूमर ऑलवेज वांट दैट his complaint or his problem should be heard by the seller, or in case he's dissatisfied with the goods and services, तो वो हमेशा चाहेगा कि वो उसकी प्रॉब्लम्स को सुने, उसकी ग्रीवेंसेस को सुने. तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फिर राइट टू बी हर्ड. तो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है द कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को, उसकी ग्रीवेंसेस को सुने. देन मैनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो अवेलेबल और द वर्किंग टुवर्ड्स डायरेक्शन एंड हेल्पिंग द कंज्यूमर इन रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस. और कंपनी को या मैन्युफैक्चरर को या सेलर को ये बोला जाता है कि आप हमेशा ग्रीवेंसेस एक सेल बनाए रखें कि whenever the consumer has any kind of a problem regarding their goods and services, they can complain over this cell. तो यहाँ पर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई रिड्रेसल और ग्रीवेंसेस एक तरह की कमेटी जरूर होनी चाहिए एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक सेलर के पास, ताकि वो कंज्यूमर की बातों को, उसकी प्रॉब्लम्स को सुने. तो कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसकी प्रॉब्लम को कंपनी सुने, उसकी डिससेटिस्फेक्शन जो भी है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग प्रोडक्ट, उसको सुना जाए. राइट टू सीक रिड्रेसल. रिड्रेसल मीन्स होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, वो हमेशा कोई भी सोल्यूशन मांग सकता है, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग सकता है. कंज्यूमर हैज राइट टू गेट रिलीफ इन केस द प्रोडक्ट शॉर्ट फ्रॉम हिज एक्सपेक्टेशन. कंज्यूमर कभी चीज को परचेज करता है एंड इफ द product is not up to his mark or up to his expectation, then customer can complain over the seller. वो सेलर को कंप्लेन कर सकता है और उसको वो मांग सकता है कि उसे रिलीफ मिले, उसको सोल्यूशन मिले जो भी उसे प्रॉब्लम उसने गुड्स के साथ फेस की है. एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ रिलीफ टू द कंज्यूमर इंक्लूडिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट. तो कंज्यूमर एक्ट बेसिकली क्या करता है कि कंज्यूमर की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कर, उसे रिलीफ करता है और रिलीफ में उसके प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, उस डिफेक्ट को रिप्लेस करने की बात कर सकता है. वट एवर द डिफेक्ट और द प्रॉब्लम फेस इन दैट पर्टिकुलर गुड्स.
or the consumer can ask for the compensation for any kind of injury or the loss he suffered due to the product. तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि जो कंज्यूमर हमेशा ये चाहता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन उसे मिले प्रोडक्ट से रिलेटेड. नाउ लास्ट जो राइट है जो कंज्यूमर के पास, अपार्ट फ्रॉम वो चाहेगा कि उसे सुने, वो चाहेगा उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व हो, एंड अपार्ट फ्रॉम द लास्ट above two, we can say that लास्ट जो राइट है उसके पास जस्ट कंज्यूमर एजुकेशन. तो कंज्यूमर की एजुकेशन देना भी कंज्यूमर का राइट है. मीन्स कंज्यूमर की एजुकेशन मीन्स कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि व्हाट आर हिज राइट्स. द कंज्यूमर हैज टू बी राइट टू acquire knowledge and be well informed कंज्यूमर थ्रू आउट लाइफ. तो कंज्यूमर हमेशा वेल इन्फॉर्म्ड रहे, इसीलिए उसके पास ये राइट है कि वो उसे कंज्यूमर एजुकेशन मिले. ही शुड बी अवेयर अबाउट हिज राइट, रिलीफ एंड अवेलेबल टू हिम इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉलिंग शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन. तो कंज्यूमर को अपने कंज्यूमर एजुकेशन मीन्स अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवेयरनेस और नॉलेज हो, दैट ऑल्सो हिज राइट. तो उसको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो वेल इन्फॉर्म्ड रहे थ्रू आउट हिज लाइफ. Or many consumer and organizations, some enlightened business are also taking an active part in educating consumer in this respect. The consumer protection and by conferring this right on the consumer empower them to fight against any kind of unscrupulous and exploitative practices. तो कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, कई बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि एजुकेशन अवेयरनेस एजुकेशन ऑफ द कंज्यूमर के पर काम कर रहे हैं. दे वांट दैट हिज कंज्यूमर विल इन्फॉर्म अबाउट हिज राइट. तो ये तरह के बेसिक राइट्स हैं जो कंज्यूमर को मिलते हैं, एंड वी हैव डिस्कस टुडे व्हाट आर these rights. So this is all for today now. Thank you, my dear student.